औरतों की सेफ्टी को लेकर क्या किया गया है? बहुत जितना बहुत किया अभी तो वैसा है ही नहीं। अभी महंगाई में अपने को नहीं पलटा अभी। यहाँ पे कभी ऐसा कभी कुछ हुआ है यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़की छेड़ दी हो किसी में? बहुत बार हुआ है, बहुत बार बहुत हुआ बार हुआ है, बहुत होता बार। रहता है। मतलब कैसे चलते हैं ना, हाँ। तो ऐसा टच होके चलते हैं। ये औरतों के लिए ये सरकारें जो है केवल बोलती हैं लेकिन ये काम नहीं करती हैं। रेप केस दिन के दिन बढ़ता ही जा रहा है। But even guys are not safe. You're talking about capturing women rape cases, go and see the amount of molestation on guys. And guys don't even speak it out because you know it's like लड़के हैं यार, क्या बोलेंगे जाके, चार लोग बोलेंगे क्या इज्जत है. Tell me, like, be it uncle, जैसे मामा, चाचा या friend के friend ऐसे, they are not safe from them. So what are you talking about the city? औरत के मन में हम लोग नहीं सोचते थे। I think these guys should be counseled. आपको लगता है सब सेफ है? हाँ हम सेफ है। सब सेफ है? हम लोग औरतें भी सेफ है? हाँ वो सब हम। We are not safe anywhere, I feel. Anywhere. Closed doors, no. Open area, no. Nowhere. आपको क्या लगता है हमारी कंट्री में जो विमेन है, हमारे देश की जो औरतें, हमारी बहनें, दोस्त जिनसे हम प्यार करते हैं, वो लोग सेफ हैं इस कंट्री में? सेफ तो नहीं है लेकिन प्रोसेस चालू है। Welcome to Kali Pili with Samaksh, where we hit the streets of Mumbai in the iconic Mumbai's Kali Pili taxi. Bringing you the ground reports from the heart of the city. No filters, no studio lights, just the real stories and real people and real impact. Today we will focus on the chilling case that shaken Maharashtra, the Pune horror rape case, which reminds us the Nirbhaya 2012 horror in Delhi. Governments have come and gone, but the reality of women's safety in our country is still the same. Women is not safe in her own nation, in her own state, which she call her home. So let's break it down and talk to the people of Mumbai. सर, आपको पुणे केस के बारे में तो पता ही होगा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है हमारे कंट्री में, हमारे देश में वुमेन सेफ्टी को लेकर क्या हालात है? हमारे देश में वुमेन सेफ्टी के लिए हालत बहुत ख़राब है। ये औरतों के लिए ये सरकारें जो है केवल बोलती हैं लेकिन ये काम नहीं करती हैं। रेप केस दिन के दिन बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, निर्भया केस हुआ, इधर पुणे का केस हुआ। आप बोलो। गवर्नमेंट को जो है ध्यान देना चाहिए औरतों के बारे में और औरतों को सेफ्टी करना चाहिए गवर्नमेंट को। आप टैक्सी चलाते हैं, आप रात रात भर भी टैक्सी चलाते होंगे, तो आपने कोई ऐसे कुछ कहानियाँ बता सकते हैं, कुछ देखा हो जो आपने अपनी लाइफ में? मुंबई में तो ऐसा नहीं हुआ है कुछ अभी। मुंबई में सेफ है। यहाँ पब्लिक भी, टैक्सी भी, ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी, टैक्सी भी सब ईमानदारी के साथ मतलब बर्ताव करते हैं लेडीज़ों के संगे। कोई ऐसा अभी आज तक कोई केस नहीं हुआ है यहाँ। Do you really think the Pune horror case reminds us Nirbhaya? I think every rape case will remind you of Nirbhaya because every woman is somebody that is doing everything for their own safety and there is nothing that everyone else is doing for their safety. It's something that is very torturous to hear, to see, because then you don't know when you're next. Right now the situation in India, not per se Pune, but in India it's become when are you next? You go anywhere out, whether it's you, your sister, your brother, or anybody, even guys for the matter of fact, not quoting only women in this, nobody is safe for the matter of fact, right? Because you go anywhere, you do anything, you're wearing normal clothes, you're wearing short clothes, you're wearing a sari, you're wearing a burqa, either which ways nobody is safe. One look from a man, you're in a wrong place, you're screwed. That's what's happening right now. Whether it is the law, and even if it is law, where people want to come forward, people want to talk, it's your own people who are pulling you behind not to do it. The system of law is very good. You need to know, you need to have the willpower to fight. But if I'm going through something wherein it's a terrible incident which has taken a toll on my mental health, physical health, emotional health, and my own people are not supporting me, y'all are journalists, all you can do is take a cover of it, but you cannot emotionally support that woman, you cannot indulge in her fight, you will not be able to give that much of time and energy for that. And I think that is something that the woman needs. That's not something nobody else can help with that. It's her own people who can do that. Where are we lacking? Everywhere. It's not about the government. Right now, it's not about how much ever you punish,
You give them capital punishment, you give them, you know, what they've done, you give them something according to that. It's not about that. I think these guys should be counseled. You take them under counseling, you take them under consideration into what they're doing is very wrong. You know, they make them understand certain things. Take the matter of fact 2611 that happened over here. Kasab was also counseled by the police officers. He himself cried and, you know, had that kind of pachtawa in Hindi, what do you say, towards what he's done. But can he undo what he's done? He can't do that. The effect that it's had on people, it can't be undone. Today also, there are a lot of people who might go to the station and they see a certain person with a bag or something and they'll think, you know, ho gaya abhi bomb. Now I'm gonna die. Now somebody's gonna pull out a gun on my head and I'm gonna be dead. It's the same thing with women. Even if it's you, for the matter of fact, even guys are not safe. You're talking about capturing women rape cases, go and see the amount of molestation on guys. And guys don't even speak it out because, you know, it's like, लड़के हैं यार क्या बोलेंगे जाके, चार लोग बोलेंगे क्या इज्जत है, कैसा बंदा है, खुद को बचा भी नहीं पाया. This is what people are going to tell you. It's not the government or anything like that. It is the people around. Government कितने लोगों को देखेगा? क्या नाम है अंकल आपका? मेरा लक्ष्मण तो क्या उम्र होगी सर आपकी? 65. 65. तो इन 65 साल की उम्र में आपने क्या फील किया है कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में वुमेन सेफ्टी को लेकर, औरतों की सेफ्टी को लेकर क्या किया गया है? बहुत जितना बहुत किया अभी तो वैसा है ही नहीं. अभी महंगाई में अपने को नहीं पड़ता. अभी महंगाई भी बहुत बढ़ गया है, आदमी को कुछ नहीं होता है. पर अंकल मैं तो औरतों की सेफ्टी के बारे में पूछ रहा हूँ ना, औरतों की सेफ्टी के बारे में. औरत के बारे में हम लोग नहीं सोचते. भाई औरत के बारे में नहीं सोचते. नहीं सोचते आप? वो सब आपको नहीं लगता सब कुछ, आपको लगता है सब सेफ है? हाँ हम सेफ है. सब सेफ है? हम लोग औरतें भी सेफ है? हाँ सब हमारा सब सेफ है, कोई दिक्कत हमारा नहीं है? पूरा फैमिली हम लोग पूरा फैमिली सेफ है. लेकिन आप बाहर देखते हो ऐसे कि नहीं. छेड़ा-छाड़ी की? नहीं हम नहीं देखते. तो फिर ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वो अभी ऊपर है, हम लोग नहीं, वो नहीं जानता सर. हम वो जानते नहीं. वो अभी बहुत होता है ऐसा, तो अपन देखता हो. तो आपको दुख तो होता होगा ना सुन के? दुख तो होएगा ना. करना नहीं चाहिए ना. हम्म. नहीं करना चाहिए. अभी वो बच्चे लोग नहीं समझते तो क्या करेगा. क्या करना चाहिए ऐसों के साथ? अच्छा चीज़ करना चाहिए. ऐसा नहीं, बुरा काम नहीं करना चाहिए. जो करना है अच्छा करने का. बाकी कुछ नहीं. हम लोग बाकी यही समझते हैं. अंकल. आंटी हाँ, आपकी उम्र क्या है? मेरे खुद को मालूम नहीं है. खुद को मालूम? सही में मेरा है ना डिलीवरी जो घर पे हुआ है, तो मेरी मम्मी को नहीं मालूम है. मैं इनको पूछती हूँ ना तो बोलते हैं ना घर पे ही हुआ है तुम, तो मेरे को नहीं मालूम तो है. ये काम आप कितने टाइम से कर रहे हो ऐसे? मेरे को इधर हो गया 30 साल. 30 साल इसी जगह पर? हाँ, इसी जगह पे. तो आप ऐसे देखते होंगे लोग आते हैं जाते हैं, औरतें भी आती हैं, हाँ, लड़के भी आते हैं. हाँ, तो आपको लगता है कि हमारे देश के अंदर हाँ. औरतें सेफ हैं? कभी कभी लगता है मेरे को ऐसा कि सेफ है? सेफ है. कभी कभी नहीं भी लगता है कि नहीं है. हाँ. ऐसा ऐसा क्यों लगता है कभी कभी? मेरे को ऐसा लगता है. पर लेकिन आपने सुना तो होगा ना इतने रेप अरे होते हैं, वो मैंने सुना है. हाँ. हाँ, मतलब सेफ नहीं है ऐसा. सेफ नहीं है. तो उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए. तो आप यहाँ बैठे हो 30 साल हो गए आपको हाँ, बैठे. तो हो क्या गए. आपको क्या लगता है खुद से कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए. वही मैं बोलूँगी ना, लड़कियों के साथ अच्छा होना चाहिए. रेप नहीं होना चाहिए, सब कुछ नहीं होना चाहिए. वो गलत है. तो आपके हिसाब से कैसे रुकेगा ये सब? अभी उतना तो मैं देखो, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मेरे को कुछ ना समझ नहीं है. उसके लिए मैं पहले ही मना किया ना कि मैं नहीं बोल सकती हूँ. पर लेकिन आप मतलब समझा तो सकते हैं ना? हाँ, समझा सकती हूँ. हाँ, तो अगर समझा सकते मेरे को समझाना होगा तो आप कैसे समझाओगे? संडे के दिन ही ऐसा ही हुआ. इधर 2 लड़की खड़ी थी और एक दारू पी के इधर खड़ा था. वो लड़की लोग तो कुछ नहीं बोली, मगर मैं बोली तो भाग गया. हाँ. मैं बोली खुद से, तो बोलते थैंक यू मैडम, तुम बोले तो तुम भी बोल सकते हैं ना. तुम नहीं बोलेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना. वही बात मेरे को अच्छा नहीं लगता है. मैं बोल देती हूँ, भले लड़की लोग नहीं बोलते मगर मैं बोल देती हूँ. मेरे को अच्छा नहीं लगता है ऐसा. अच्छी बात. हाँ, तो मैं बोल देती हूँ. मैं किसके भी लिए ऐसा हेल्प कर सकती हूँ. ऐसा मैं डरती नहीं हूँ यहाँ पे किससे. कभी ऐसा कभी कुछ हुआ है यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़की छेड़ दी हो किसी में? बहुत बार हुआ है. बहुत बार बहुत बार हुआ है. बहुत होता बार. रहता है। मतलब कैसे चलते हैं ना, हाँ. तो ऐसा टच होके चलते हैं. जो लड़की लोग खड़ी रहती है ना, तो ऐसे टच करके चलते हैं, तो अच्छा नहीं है ना. तो लड़की लोग कभी कभी चिल्लाती है कि चप्पल से मारूंगी मैं अगर देख लिया तो. मैंने कभी कुछ भी होता है ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है. होता है. अब ये तो सब होता है, तो उसको होने के बाद आपको क्या फील होता है? क्या अंदर क्या लगता है? होने के बाद ये फील होता है हमको ये करना चाहिए और ये सोचना चाहिए, जैसे कि हम नॉर्मल ग्राउंड पे भी और पॉलिटिकल के हिसाब से भी, कि जैसे हमारे घर की बच्ची के साथ, बहन के साथ यह होता है तो हम क्या पर्सनली सोचेंगे. तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमको उनके लिए उसी तरीके से काम करना चाहिए जिसके जैसे वो हमारे घर के मेंबर है. तो हमारे घर के मेंबर के लिए क्या करेंगे अगर हमारे घर पे कोई होगा
उसको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, तो उसको जल्द से जल्द सज़ा देनी चाहिए। और जो वर्स्ट जो होता है ना वो उसके साथ करना चाहिए, जो भी ये करता है करने वाले के साथ। और वुमेन सेफ्टी के लिए ये करना चाहिए सबसे पहले तो कि वुमेंस को भी इतना थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह देनी चाहिए कि उनके साथ जैसे टच है या कुछ है, बैड टच गुड टच, उनको समझ में आना चाहिए। जैसे मार्केट में है, किधर है, क्या है, तो उनको खुद भी अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एंड दूसरे जो लोग होते हैं आसपास में, जैसे मेन घूमते हैं, तो उनको भी ज़रा मतलब ये चीज़ का अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई किसी का अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो खुद कुछ आगे आके कर सके। अभी देखो यूपी में बस पलटी हो जाती है, ये जीप पलटी हो जाती है, तो यहाँ पे भी कुछ जीप पलटी होनी चाहिए ऐसे लोग जो करते हैं उन लोगों के लिए। तो मतलब आप योगी जी को सपोर्ट करें? हाँ, फुल सपोर्ट योगी जी का हाँ, बुलडोजर। फुल सपोर्ट। जो गलत है वो गलत है, उनके लिए जो भी कर रहे हैं वो जीप पलटी कर रहे हैं वो करना चाहिए। यहाँ पे भी महाराष्ट्र में भी 2-4 जीप पलटी हो जाए तो लोगों को समझ में आ जाए कि भाई हम लोग भी ये काम करेंगे तो जीप पलटी हमारी भी हो सकती है। So what do you think about the women's safety in our country, in Maharashtra? I think women's safety, you just now asked me how about the city and all that, right? कि city में कितने safe है या बाहर कितने safe है। सबसे important point मेरे को ऐसा लगता है कि forget about out of the house. The safety has to be in the house. That is more important. I have known so many friends of mine जिनके daughters को घर में like be it uncle, जैसे मामा, चाचा या friend के friend ऐसे, they are not safe from them. So what are you talking about the city? It should begin right from the home. That's what I feel. So yeah. So इसको कैसे कम किया जा सकता है? Awareness. I think now obviously kids and girls are taught good touch, bad touch. ये ज़्यादा होना चाहिए. Parents should talk to kids, especially a girl child, very much. A mother, a father should talk to a child, a girl child कि are you okay? Are you feeling okay? कुछ तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ऐसे। So वो ज़्यादा important है क्योंकि बच्चे जनरली हम जैसे वेकेशंस के लिए जाते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे, अब पता नहीं अभी थोड़ा कम हो रहा है। But yes, they face there a lot of I'm not saying like that level, but still होता है ऐसा। yeah. आपको क्या लगता है हमारी कंट्री में जो विमेन है, हमारे देश की जो औरतें, हमारी बहनें, दोस्त जिनसे हम प्यार करते हैं, वो लोग सेफ हैं इस कंट्री में? सेफ तो नहीं है लेकिन प्रोसेस चालू है। प्रोसेस चालू है? हाँ, प्रोसेस चालू है। क्लास पढ़ते हो क्या अभी? Yes, yes. कौन सी क्लास में हो? मैं 11th में हूँ। 11th क्लास में। तो आप कुछ देखते हो ऐसा, मतलब क्लास में लड़के कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं या जो भी है, तो चलता रहता है क्या सब कुछ? या मैंने बहुत बार देखा है हाँ कि बहुत सारे लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं, जहाँ लड़कियाँ अनकम्फर्टेबल रहती है हाँ। या मतलब वहाँ पे कंफर्ट फील नहीं करती है, बट वहाँ पे हम जैसे लोग आवाज़ उठाते। तो आप ऐसा क्या करते हो जो लोग कंफर्टेबल फील करें? आपको क्या लगता है ऐसा क्या करना चाहिए और आप क्या करते हो? हमको समझाना चाहिए उनको कि हमारे घर पे भी माँ बहन है, कि आपके घर पे भी माँ बहन रहेगी, जो कि आप समझ सकते हो कि हमारे घर में जो माँ बहन है वो आपके घर पे भी होए, तो हम बाहर की लड़कियों को ऐसे ना फील करें या तो फिर हमको ये अपने देश में बढ़ाना चाहिए। यस, थैंक यू दोस्त, बहुत छोटी उम्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार आप। So I think women's safety in our country is not taken seriously enough, because I'll tell you, even if now you search in Google about the safest city in the country, it will show Calcutta, but you know what happened in Calcutta, right? So I don't know how serious the government is, the people around us is about women's safety. So I don't know where it is going, but I just hope that we do something for it. And most of the cases happened in the crowded area. That's true. We are not safe anywhere, I feel. Anywhere. Closed doors, no. Open area, no. Nowhere. Do you feel any difference in both states in women's safety? I don't think women's safety differs from state to state. I think it's a universal problem, and I don't think it's fair to put blame on India. It's in itself. I think maybe if you make more stringent laws and the punishments get more stricter, then things might improve. Also, maybe if you start building this at home, the respect, how to treat women at home, probably that will help change a lot of mindset. So basically, if you begin at home, it's going to make things a lot better. We need to change the core, values of people as well. Not only, government. Everything should start from our home itself. So, yeah. And I
I think when you start calling out people amongst your own circle, when they start doing things like when they start harassing women or making jokes out of women's safety, that's where the first step begins. So, like I said, it begins at home. If I'll talk about women's safety in our country, there are laws, but I don't think they are working properly. So I think government should have to work on the imposing the law properly first, and yeah, it needs to be improved. What about your state? I'll say it is safe pretty much around, but I don't say that much is it's that much safe that we cannot walk around freely after 9. I'll say 9 p.m. But it's same in a day as well. Anything can be happen in day, broad daylight as well. Do you feel any difference in safety? मुंबई बहुत अच्छा है सेफ्टी के मामले में, ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ है कि इनसिक्योरिटी ऐसा नहीं होती है। रात में दिन में कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, बहुत फ्रीडम फील होती है यहाँ पे। यूपी में तो थोड़ा है, सेफ्टी फील होती है यहाँ पे। अच्छा शहर है। यूपी में इतना सेफ नहीं लगता था बिल्कुल। नहीं, यूपी में 8 बजे के बाद ऐसे नहीं निकल सकते, ऐसे घूम नहीं सकते हो। और वहाँ पे पेरेंट्स भी इतना अलाउ नहीं करते, जैसे यहाँ पे 10-11 बजे तक हम लोगों को चलता है, बट पेरेंट्स वहाँ अलाउ नहीं करते बिल्कुल। 6 बजे के बाद आपको किसी के साथ जाना है तो आप जा सकते हो, बट यहाँ पे जैसे फ्रीडम है, आप अकेले भी घूम सकते हो या फ्रेंड्स या किसी के साथ भी, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। आपको ऐसा क्या लगता है कि मतलब उत्तर प्रदेश और मुंबई में ऐसा क्या डिफरेंस है जो इतना ज़्यादा लोग? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों की मेंटालिटी है ना, वो चेंज करती है। जैसे यूपी और मुंबई को यहाँ के लोगों की मेंटालिटी चेंज करती है। वहाँ के लोगों की मेंटालिटी अभी भी पिछड़ी ही है, वैसी ही है गर्ल्स को लेके, तो उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। So this is what Mumbaikars think about the women's safety in our own country. After talking to these people, what I have realized that we should change our way to tackle all these problems. और क्या तरीके हम ला सकते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं. So this is Samaksh Namdev signing off with a reminder to always stay safe. Thank you for watching.